ਉਹ ਵੀਰੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਉਹ 10:30 ਹਾਂ ਇਹ ਤੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਓਹੋ ਬੜਾ ਲੇਟ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਇਆ ਕਰ ਉਹ ਬੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਨਾ ਛਾਪਾ ਛੂਪਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਛਾਪੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਜ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੱਲ ਇਧਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਦੀ ਜੰਮੂ 'ਚ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆਇਆ WhatsApp ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕੀ ਹੈ एक मिनट वो व्हाट्सएप ग्रुप दफ्तर का दिखना है मैं अच्छा मैसेज पाया देखो कोई मैसेज आया ओ भरावा ये की हो गया फोन क्यों पढ़ने लगा है ओ यार पूरा मैसेज तो पढ़वाया नहीं कोई सस्पेंशन लिखे था आगे हैं सस्पेंड 6 महीने वास्ते सस्पेंड और रिश्वत ली है कोई ओ ना मैं रिश्वत लेना कोई ना कोई रिश्वत ली है तू तद तेरा सस्पेंशन ऑर्डर आया पढ़ पूरा मैसेज पढ़ के है मैं पढ़ जरा you are मैंने भी फॉरवर्ड कर नाल you are suspended because you are not present at your duty time in the office ਲੈ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸਹੀ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕਰ ਲਾੜੀ ਮਰ ਗਈ ਉਠਾਂਦੇ ਮੰਮੀ ਮਰ ਗਈ ਉਠਾਂਦੇ ਉੱਠ ਜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ 10:30 10 ਵਜੇ ਤੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਟਾਈਮ 10:30 ਤੂੰ ਘਰ ਪੁੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਸਤਵਾਰੀ ਜਾਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ट्रैफिक तेन पता ही है साढ़े जम्मू की हुण की करेगा हुण घूमो लाड़ी कन्ने जाओ पत्नीटाप जाओ ਵੀਰ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਤਕੜਾ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਰੁਕੋ ਮੈਂ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਟਾਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਫੋਨ ਮਿਲਾਵਾਂ ਯਾਰਾ ਕੱਢਾ ਨੰਬਰ ਜਰਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਯਾਰਾ ਕੀ ਸੀਨ ਚਲੇ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀ ਸੀਨ ਚਲੇ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਠਹਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ ਠਹਿਰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਨਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਪੁੱਜ ਗਏ ਹੋ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਘਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਘਰ ਹੈ ਕਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਕੱਢਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਦਾ ਵੀਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਗਏ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਰੁਕੋ ਮੈਂ ਯਾਰ ਬ੍ਰਿਜ ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਰੋ ਪੁੱਛੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਭਰਾਵਾ ਅੱਜ ਵੱਜ ਗਿਆ ਛਾਪਾ ਆਦਾ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੋ ਦਫ਼ਤਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ 11:30 ਵਜੇ ਪੁੱਜਦਾ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ 11:30 ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਕਰੋ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਬਾਜ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਮੋਹਿਤ ਵੀਰੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਆਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਕਿਤੇ ਲਿਸਟ ਪੜ ਲਿਸਟ ਓਹੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹਦੇ 10-15 ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਹੈ ਥੱਲੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਾਰੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੱਸ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5.5 ਸਾਲ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਯਾਰ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਖੜੋਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੀਏ ਜਿਹਨੂੰ ਪੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਨੂੰ ਪੀਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਅੱਛਾ ਪੀਏ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਬ ਕਰੇ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਜੋ ਬੋਲ ਸਾਬ ਕਰੇ ਪੀਏ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਕੁਮਰੇ ਬੰਦ ਨਾ ਬੰਦ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਘਰ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਬ ਵੀ मीटिंग में है मीटिंग में घर हाँ मीटिंग चलेगी लंबी हाँ लंबी वो साहब आएंगे कल मतलब सीधा कल आ जाना ही नहीं इयां नहीं करते ना पता चक्कर की हुंदा
ਉਹ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਠੀਕ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਤਦੇ ਤੇਰਾ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਆਂ ਬਚਾਵਾਂ ਨੌਕਰੀ ਕੀਆਂ ਬਚਣੀ ਹੁਣ 6 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਬੈਠੋ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰੋ ਲਾੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕਨੇ ਜਾਓ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਪਤਰੀ ਟਾਪ ਡਲੋਜੀ ਭੱਦਰਵਾਹ ਬਰਫਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੈਕਦੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਟੂਰ ਬਣਾ ਲਓ ਇੱਕ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੁਣ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰੋ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਐਸ਼ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਦੇ ਹੋ ਉਹ ਯਾਰ ਹਰਮੀਤ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਏ ਆਦਤ ਉਦਤ ਬਦਲੋ ਇਹ ਆਦਤ ਜੇ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲੀ ਕਿਤੇ ਯੁਗਾਂਡਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤੀ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਸਵੇਰੇ ਪੁੱਜੇ ਰਾਤੀ ਥੋੜੇ ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਲੱਗਣਾ ਅੱਜ ਕੀ ਪਤਾ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਏ ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖਾਲੀ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀ ਤੋਏ ਉਹ ਨੀਲ ਕਪੂਰ ਦੇ ਨਾਇਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤੀ ਵੀ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਾਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਸੀਐਮਓ ਬੀਐਮਓ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਭ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੋ ਸਾਰੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਣੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਰ ਧੰਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਤੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੁੱਜੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਯਾਰ ਸਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਕੀ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਐਸ਼ ਮਾਰੀ ਨਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜਨਤਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੌਕਰ ਤੇ ਜਨਤਾ ਬੈਠ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਪੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਗਏ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਗਏ ਹੈ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਤੇ ਆ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦਾ ਮਾਰੇ 10:30 ਜਾਂ ਪੌਣੇ 11 ਵਜੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ 11:30 ਵਜੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ 12:30 ਵਜੇ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸੁਣਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਚੋਰੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਪੁੱਜਣੀ ਵੈਸੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹਫਤੇ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਬਸ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੁਣ ਲਓ ਬਾਈ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਜੰਮੂ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਜਾਗੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਉਹ ਜਨਤਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉਹ ਬਣਾਓ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਆਏ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹਾਂ ਤਦੇ ਨਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਆਏ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਭਜਣੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣੇ ਕਿੰਨੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਭਜਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ 5 ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਉਹ ਜੰਮੂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਭਰਾਣ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਔਰ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਰਾ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਕਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਨਾਕਾ ਕਰੋ ਤਿਆਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਬੂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੋ ਕੰਨ ਟਾਈਟ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ ਬੈਲਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਲਾ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਖਤਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨੇ ਜੇ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਲਸਬਾਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਆਲਸਬਾਜੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ WhatsApp ਤੇ ਆਣੇ ਮੈਸੇਜ ਲੰਬੇ ਲਿਸਟਾਂ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਖ ਬਣੇਗੀ ਨਿੱਕੇ ਦੀ ਵੱਖ ਬਣੇਗੀ ਤੇਰੀ ਵੱਖ ਬਣੇਗੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਬਾਈ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਸਲੂਟ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨਾ ਇਹ ਬਾਊ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਬਾਬੂ
ਓਏ ਸਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੀਂਹ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, सब तो पहले आखना हे मेरे भगवान हमारे डिपार्टमेंट में चौधरी साहब कोई छापा ना मारे, छापा ना मारे। और जब तक हम पहुंच नहीं जाते, ना ही सड़कों पर जाम लगे, ना कुछ हो, हम अपने टाइम टेबल पे दफ्तर पहुंच जाए। ਇਹ ਦੁਆਵਾਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਮੰਗੋ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਵੀਵਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਉਹ ਨਾ ਚਨਾਬ ਵੈਲੀ ਵੀ ਬੜਾ ਪੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਜੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁੱਜਣਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਈ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਇਹ 5-6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਆਦਤ ਪਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਛਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ? ਯਾਰ ਕੋਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੋਂ ਲੇਟ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਹੋ। ਚੱਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਉਹ ਲਾਓ, ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ, ਟੇਬਲ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਣਾ। विनोद खजूरिया जी कह रहे हैं वेरी गुड जॉब सुरेंद्र चौधरी जी, ग्रेट लीडर, वेरी गुड। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਜੰਮੂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, चौधरी साहब ने इनको सस्पेंड कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया, तो लाजमी था आप तक इस वे में पहुंचाना शो के जरिए। और ये जाग दो जम्मू वाले इसलिए लाया गया कि आखिरकार जो सरकारी बाबू हैं वो लोग जागें, और कहीं ना कहीं अब उन्हें जागना पड़ेगा। अब जागे और भागे हैं, क्योंकि अब टाइम टेबल और तमाम चीज़ें जो है वो देखी जाएंगी। और अच्छा, एक कमेंट आया बबलू जी का, J&K न्यूज़ बज़ के चैनल पर एक कमेंट आया, सर प्लीज़ ट्रैफिक पुलिस वालों का भी कुछ करो, नरवाल तो विजयपुर सब 500 रुपए एंट्री लेते हैं। भाई जी ये ते बड़ा बड़ा खुलासा करके ने बबलू जी। बबलू जी एक काम करो, ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜਿਓ ਵੀਡੀਓ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਬਣਾਓ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਭੇਜੋ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 500 ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ 500 ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਧਰ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਦਾ ਉਹਦਾ GST ਭਰੋ, ਆਪਣੀ ਬਿਲਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾਓ, ਆਪਣਾ ਪਰਮਿਟ ਦਿਖਾਓ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿਖਾਓ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿਖਾਓ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਓ। ਐਂਟਰੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਐਂਟਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਸਮਾ ਪਾਉਣਾ। SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੈਮਰਾ ਲਾਇਆ ਦਾ ਨਾ ITMPS, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲੀ, ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੈਮਰਾ ਲਾਓ ਕੋਈ, ਔਰ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਿਖਾਓ। ਉਹ 500 ਐਂਟਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਖਿੱਚੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪੁੱਜ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ बबलू जी कह रहे हैं साढ़े इत्थे, ते वीडियो तो बननी बनती है। मिशमेवर त्रिपाठी जी, क्षमा चाहूँगा अगर नाम गलत, ये कह रहे हैं बहुत सही काम कर रहे हैं चौधरी साहब, लोग 10 साल से परेशान थे पहले। बिल्कुल। इधर भी एक कमेंट आया, कमेंट भी अब साथ कमेंट पढ़ेंगे, साथ में आप अपनी राय रखिए, कमेंट करते जाएं, वीडियो शेयर करते जाएं। राकेश शर्मा जी लिख रहे हैं नौशहरा दा शेर, और बिल्कुल भाजी काम जिहड़ा कीता है ना चौधरी साहब ने, शेरां वाला ही कीता है। जियां शेर जांदा ना, जिस मर्जी वाले दिल किता, शेर अपना कहते इलाका जो मर्जी हो, धमाका हमारा होगा। और धमाका जिहड़ा चौधरी साहब ने किया ना अज, वो बाईगार्ड जम्मू तो जिन्ने चैनल, जिन्ने वीडियो अज चौधरी साहब की अज तारीफ हो रही है, और तारीफ होनी भी बनती है। इस तरीके नाल अगर साडे चुने हुए नुमाइंदे अगर इस तरीके नाल काम करन ना, मैं कहना सरकारी बाबू ना, और राती भी कोट पैंट ते बूट बन के बहन गए, अपने तस्मे पा के बिल्कुल सैट हो के बैठनगे। सवेर होई दी खिस सीधा ते अनिल कपूर दे नायक दी तरह अज एंट्री चली है चौधरी साहब दी, तो सस्पेंशन भी हुआ ही निकले है। बंदियां नूं नोट करांदे रहे, PA साहब तारा भाई कड़ा बंदा है, कहाँ गए थे, नाम लिखिए, नंबर लिखिए। और नाल उन्होंने आख्या कि बड़ी ये आज इस डिपार्टमेंट की बड़ी बदकिस्मती है। हाँ। बदकिस्मती। हाँ। कि भाई आज चौधरी साहब उते पहुंच गए, हुण अगला डिपार्टमेंट केड़ा होएगा? और डिपार्टमेंट वाले हो, सरकारी नौकरियां वाले जाग जाओ सारे, क्योंकि हुण सरकार आई थी चुने जी। चौधरी साहब ने कहा कि
हम चुने हुए हैं, हम सिलेक्टेड नहीं है, नॉमिनेटेड नहीं है, उन्होंने चुने हैं, लोगों ने उन्हें नुमाइंदगी दी है। तो सभी लोगों को ये समझना होगा जो सरकार आई है, और जिस तरह से सरकारी दफ्तरों में ये कंप्लेंट्स हमें भी मिलती थी, लेकिन हम भी अपनी खबरों के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते थे, लेकिन वहीं पर अब जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसा सियासी चेहरा है जिसका नाम सुरेंद्र चौधरी है। और सुरेंद्र चौधरी जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, सतीश शर्मा जी हो, इन दोनों चेहरों ने कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर की सूरत बदलने में अहम योगदान रहेगा। सरकारी दफ्तरों में छापे बज रहे हैं, सरकारी ऑफिसों में छापे बज रहे हैं, और छापे आप लोगों के लिए बज रहे हैं कि आखिरकार आप लोगों को मायूस ना होना पड़े, आप लोगों के काम ना रुके। अब आप लोगों का काम ना रुके वो तो चौधरी साहब ने ठान लिया, अब आप कमेंट करिए कि आखिरकार ये फैसला कैसा आ रहा है। संजीव कुमार जी का कमेंट आ रहा है, सुरेंद्र चौधरी ग्राउंड के लीडर हैं और उनको हर चीज का पता है कि क्या हो रहा है। जम्मू में कोई ऐसा लीडर नहीं है उनके बराबर। फिर एक और अभी आ गया है, वट मोहित स्वरूप, व्हाट अबाउट रेवेन्यू डिपार्टमेंट। चौधरी साहब रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी जी कुछ चल रहा है, लेट लतीफ कुछ है ने ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਵੈਰੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ चौधरी साहब ने। पीएचई वाला न्यू कनेक्शन है 70 से 80,000 लेते हैं। ये हमारा राजेश शानूर कमेंट करते पीएचई वाले न्यू कनेक्शन का 70 से 80,000 रुपया लेते हैं। खुलासे बड़े हो रहे हैं साडे चैनल दे ऊपर साडे चैनल दे खुलासे हो रहे हैं, हो रही हैं 70 से 80,000 रुपया किस चीज का? पीएचई का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन नया है। ये खबर मैंने अपने चैनल पे चलाई भी है, सरदार जी मेरे पास आए थे, उन्होंने भी ये चीज शिकायत की थी। राजेश शान जी बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने के लिए, लेकिन आप लोकेशन भी जरूर बताइए, किश्तवाड़ के हैं, जम्मू के हैं, मिल रहा है जहां पे ये चीज हो रही है आपके साथ कि पीएचई वाला न्यू कनेक्शन जो है वो 70 से 80,000 रुपया अगर कोई आपसे ले रहा है तो जरूर आप एरिया भी बताइए कि आखिरकार ये वीडियो भी सुरेंद्र चौधरी जी को हम जरूर टैग करेंगे, और साथ साथ जरूर कमेंट भी जो है वो आपका उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस तरह का नहीं हो। लेकिन एक और कह रहा है कि इवन मैंडेटरी बायोमेट्रिक अटेंडेंस इज डेलिबरेटरी मेड डिसफंक्शनल मोस्ट। राजेश जी ये बहुत अच्छा कमेंट किया है इन्होंने, बहुत अच्छा कमेंट किया है। लेकिन और ये चौधरी साहब को और ये डिपार्टमेंट जो जिन जिन मंत्रियों के पास हैं उनको ये देखना चाहिए कि जितने बायोमेट्रिक दफ्तरों में लगी हुई हैं, अगर वो बायोमेट्रिक फंक्शनल नहीं है, सबसे पहले उन बायोमेट्रिक को सही किया जाए, ये सरकारी बाबू खुद सही हो जाएंगे। ये बायोमेट्रिक खराब नहीं है, मुझे लग रहा है खुद ही नॉन फंक्शनल करके रखी हुई है इन्होंने, ताकि इनके पीएचई जो है वो बहानेबाजी तेरी चलती है ना, फिर पीए के साथ सेटिंग। पीएचई नए कनेक्शन की जो बात करें, मैंने राजेश शान जी और किश्तवाड़ से बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, आप लोग प्यार देते हैं मुझे। मैं भी किश्तवाड़ से ही हूँ, लेकिन राजेश शान जी कह रहे हैं कि किश्तवाड़ के अंदर ऐसा हो रहा है जहाँ पर 70 से 80,000 रुपया लिया जा रहा है एक कनेक्शन। कोशिश कीजिए जी, अगर कोई इसकी वीडियो या कोई प्रूफ आपके पास एविडेंस है हम तक भेजिए भाई। खबर करना हमारा काम है और खबर बेबाकी से करेंगे, और जरूर एडमिनिस्ट्रेशन आ रहे हैं। राकेश शर्मा जी कह रहे हैं चौधरी साहब ग्राउंड लीडर हैं, मोदी के नाम से नहीं जीते। वो तो नेचुरली बात है, जो अब्दुल्ला जी के नाम से जीते हैं, मोदी जी के नाम से थोड़े जीते हैं। सुखदेव सिंह जी लिख रहे हैं ग्रेट न्यूज, कठुआ से सुखदेव सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुखदेव जी। वीडियो को शेयर भी करें, वीडियो को शेयर भी करते जाएं, सारे आप लोग जुड़ रहे हैं साथ में लाइव में, और भी जो है इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और इश्यूज लोगों के हमें, क्योंकि हमारा शो फनी वे में करना आप लोगों तक एक, क्योंकि खबरें हर कोई करता है, हर कोई कर रहा है, लेकिन एक अंदाज में इस तरीके से आप तक पहुंचाना सभी लोगों को, अच्छा, जो एक फनी वे में। अच्छा अंकुश एक बात बता, हाँ, ये अगर अब ये 5 साल सरकार चलने वाली है ना, हाँ, तो 5 साल में और पिछले 5 साल में, हाँ, ये जितनी ऐशो आराम की, पीए के साथ जितनी सेटिंग की, हाँ, वड्डे साहब 12 सवा 12, उससे बाद अब ये अगर 5 साल अगर यही सरकार चलेगी, हाँ, तो हमारा जम्मू ठीक हो जाएगा इसी तरीके से हो जाएगा। मतलब नाके लगाने पड़ेंगे सबके डिपार्टमेंट। मतलब देखो ना, अब जो 6 महीने के लिए बड्डा साहब भी गया, निक्का साहब भी गया, वो तो निक्का भी गया, तो वो तो निक्का भी गया। अब जो बड्डा आएगा, बड्डा साहब गलती करेगा कि मैं ड्यूटी से ना पहुंचा। रवि हंस जी हमारे साथ डेली वेजर की मेल लीड जो करते हैं डेली वेजर्स की, रवि हंस जी हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं 70-80 हज़ार फॉर वाटर कनेक्शन
नॉट पॉसिबल, कमर्शियल कनेक्शन जो है वो हो सकता है। उनका ये कहना है कि कमर्शियल कनेक्शन जो है वो 70-80 हज़ार का हो सकता है, वाटर कनेक्शन नहीं हो सकता। अब संजीव कुमार जी उस पर एक और कमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर जम्मू को सुधारना है और डिपार्टमेंट को सुधारना है तो जम्मू की मीडिया को बहुत बड़ा रोल अदा करना पड़ेगा, सच को सच बताना पड़ेगा। जो सच है वो तो आप बिल्कुल तक पहुंचाएंगे। सही संजीव जी कहा। और रवि हंस जी के भी कमेंट पे मैं कहेंगे कि इस पर जांच पड़ताल जरूर होनी चाहिए। और मैं अंकुश जी कहूंगा कि जिन सज्जन ने कमेंट किया है आप उनको बोलो अपना नंबर जो है हमें इनबॉक्स करें, यहाँ मत करें। हाँ। आपके व्हाट्सएप नंबर पे अपना नंबर बता दें, वहाँ करें। राजेश आन जी, आपने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है कि आखिरकार 70 से 80। अब आप थोड़ा अगर व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, जो ऑफिशियल नंबर है, क्या कमर्शियल कनेक्शन है या कुछ अवैध रूप से कनेक्शन, कुछ जो भी सिनेरियो मामला है पता चलेगा वो पूरा लीगली फॉर्मेलिटीज में अगर आप व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं तो अच्छी बात है, और उस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके जो संजीव कुमार जी ने कहा कि जम्मू को अगर सुधरना है और डिपार्टमेंट को सुधरना है तो जम्मू की मीडिया को बहुत बड़ा रोल अदा करना पड़ेगा, सच को सच बताना पड़ेगा। संजीव जी ये विश्वास मैं अपना और अंकुश का जरूर बोल सकता हूं कि हमारे चैनल्स पर जो सच होगा आपको वही दिखेगा, चाहे वो जितना मर्जी किसी बड़े डिपार्टमेंट के लिए होगा, बड़े मंत्री के लिए होगा या संतरी के लिए होगा, किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो चीफ मिनिस्टर के खिलाफ ही क्यों ना हो। लेकिन हमारे पास अगर आप लोग कोई खबर पहुंचाएं उसका सबूतों के हिसाब से बिल्कुल एविडेंस बिल्कुल हो, यकीन मानिए। मैं अपना नंबर बता रहा हूं 8494046450। अंकुश नंबर अपना पेज पे बता देता है आपको, आप बेझिझक होकर भेजें और आपको यकीन दिलाते हैं कि हम दोनों के चैनल पर वो खबर चलेगी और खुलासा आप जो भी बताएंगे लोग वो बिल्कुल करके देंगे। बाकी और चैनल्स का मैं कुछ कह नहीं सकता, उनकी अपनी मजबूरियां हो, अपने कहते हैं अपनी कंपनी का सिनेरियो होता है, अपनी लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, तो किसी को लेकर हम कुछ नहीं कह सकते। क्या करेंगे, ठीक है, क्योंकि जर्नलिज्म की फील्ड भी बहुत बड़ी है, बहुत इदारे हैं इसमें भी। लेकिन आप सबसे अपील रहेगी, मेरा नंबर है 6006649071। कोई भी खबर हो बट लीगल वे में होनी चाहिए, आप लोगों के एविडेंस पूरे प्रॉपर होने चाहिए। कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, हर किसी के खिलाफ जो है वो खबर लग सकती है। एक और मुद्दा जो है इसमें आ गया है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हेड 2211 फीमेल मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर को 5 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। इट मीन्स आप आशा वर्कर्स जो हैं या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, मेरे हिसाब से आप उन्हीं की बात कर रहे हैं कि उनको जो है वो 5 महीने से सैलरी नहीं मिली। हमने देखा उनका कुछ प्रदर्शन भी जो है वो चल रहा था और उम्मीद करेंगे कि उनकी आवाज़ भी जो है वो डिपार्टमेंट तक, हमारी मीडिया फर्टर्निटी के भी भाई बहन जो है वो काम कर रहे हैं, यकीनन वो भी अपना काम बिल्कुल कर्तव्य से कर रहे हैं और हर एक मुद्दे को जनता के सामने लाते हैं, प्रशासन तक भी लाते हैं। और उम्मीद करते हैं कि ये हेल्थ वर्कर्स जो आशा वर्कर्स या आंगनवाड़ी वर्कर्स ही मुझे लग रहा है शायद इसमें हेल्थ और वेलफेयर फैमिली वेलफेयर में आती हैं, तो यकीनन वो मुद्दा तो है, सरकार को इनको देखना चाहिए। एक तो ये पॉलिटिकल रैलीज में जो है भीड़ इकट्ठा करने का काम जो है इन्हीं लोगों को जो है वो दिया जाता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। दूसरी चीज़ कि इन्हीं लोगों की सैलरी कोई ज़्यादा भी नहीं होती है, इनकी सैलरी मेरे हिसाब से 2500, 3000, 4000, 6000 या 5000 इतनी सैलरी होती है, और वो भी अगर 5-5 महीने से नहीं मिल रही है तो आप यकीन माने कैसे अपने बच्चे पालते होंगे। तो नई सरकार जो है उसको इसको भी जो है वो देखना चाहिए। जाहिर सी बात, अगर आज की बात करें तो आज जिस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी हमें मिले, काफ़ी अरसे से एसपीओ हमें फ़ोन कॉल्स कर रहे थे। मैंने कुछ दिन पहले महराम अंजुम के साथ खबर भी की थी जिसमें एक एसपीओ ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि भाई साहब हमारे लिए आवाज़ बनी है, आप लोग आवाज़ करें, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो वो बात नहीं कर सकते। हमने आज सतीश शर्मा जी उनसे बात की, उन्हें कहा कि आखिरकार एसपीओस को कब सैलरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि एलजी साहब से बात हो रही है क्योंकि एलजी साहब के पास डिपार्टमेंट है। उसके बाद अगर कटरा के अंदर जो इंसिडेंट हुआ जहाँ पर कई लोगों को गिरफ्तारियाँ करनी पड़ी, कई प्रदर्शन हुए, उसको लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि अखनूर की खासकर बात करें तो अखनूर के अंदर 50,000 जो लोग हैं वो अखनूर के ही वहाँ पर घोड़ा चला रहे हैं।
घोड़े चला रहे हैं, पिट्ठू चला रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग अखनूर से जो है वो एक गाँव से वहाँ पर हैं। तो बहरहाल हमें जब टाइम मिलता है, हमें जब भी इन नेताओं के साथ अगर इंटरेक्ट होते हैं, हमारे मीडिया फटर्निटी के लोग होते हैं, तो वो बहरहाल इन सवालों पे उनसे सवाल जो है ज़रूर कुछ कमेंट हो रहे हैं। मैं अंकुश जी आपको रोकना चाहूँगा। कुलभूषण सिंह जी कह रहे हैं ये परमानेंट है सर, जिनकी वो बात कर रहे हैं। अर्जुन सिंह जी हैं, मीडिया हेल्प करती है क्या पुअर फैमिली की? बिल्कुल करते हैं, हमारे कई ऐसे मीडिया कर्मी हैं जो पुअर फैमिलीज़ की हेल्प भी करते हैं। रवि हंस जी का फिर एक मैसेज आया है, और बहुत बहुत शुक्रिया रवि हंस जी, आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं। गुड वर्क हरमीत जी, गुड वर्क अंकुश जी। जम्मू में एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। बिल्कुल रवि जी, आपका अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन सरकारी एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिक्स होनी चाहिए। और जो सबसे पहले कोई मुद्दा करे ना करे, सबसे पहले अगर अहम मुद्दा अगर इस समय देखा जाए तो वो है पीएचई डेली वेजेस। डेली वेजेस को रेगुलराइज किया जाए, और डेली वेजेस के जो कोशिश तो कर रही है, वेतन नहीं, कोशिश कब तक कोशिश चलेगी? नई सरकार आई है, कैबिनेट में डाले जाएगा। अब टाइम रवि हंस और लास्ट टाइम भी बात हुई, उन्होंने कहा कि समय ले, लेकिन ये इस तरह का ना इन्हें फिर देखना पड़े कि ये 5 साल गुजरने के बाद फिर डेली वेजेस उसी दफ्तर के अंदर उम्मीद कर रहे हैं कि ये सरकार की नीयत लग रही है कि कैबिनेट में जल्दी से प्रपोजल जो है लाया जाए, उसको अप्रूव किया जाए, एलजी साहब के पास भेजा जाए, फिर केंद्र सरकार के पास भेजा जाए। इस पर बहुत सियासत हो चुकी हुई है। रवि हंसी से मेरी जब इंटरव्यू हुआ, उन्होंने भी ये कहा और मैंने भी ये कहा कि सियासत बहुत हो चुकी है। अब इस मुद्दे को लेकर, डेली वेजेस के मुद्दे को लेकर सियासत खत्म कर दो, आप लोग पक्के कर दो बस इनको। और जिस दिन पक्के करोगे, यकीन मानिए मैं खुद जो है डिब्बा लेकर, मिठाई लेकर, बम पटाखे लेकर डेली वेजेस के दफ्तर जाऊंगा और वहां पर पूरी रात उनके साथ जो है वो जश्न मनाएंगे, क्योंकि इससे बड़ा मुद्दा कुछ नहीं होगा। और सरकार जो बोलेगी उस दिन, जो बोलेगी, जैसे बोलेगी वैसे ही करेंगे, क्योंकि इससे बड़ी खुशी की बात जो है वो कुछ जम्मू के लोगों के लिए, हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती कि हमारे डेली वेजर भाई पक्के हो जाए। नया मुद्दा आ गया है जी, एक फायर इमरजेंसी की स्कैम की रिपोर्ट जो है क्यों नहीं ओपन हो रही? भाई साहब बहुत समय हो गया। 3 मेंबर की कमेटी बनी थी, एलजी साहब ने 3 महीने का टाइम दिया था। वो मेंबर्स जो हैं जिन पर कमेटी के तो थे राहुल रोहित कंसल जी थे शायद, वो भी कहीं ट्रांसफर हो गए। सब चीज़ों की सबसे बड़ा जो धांधली जो है जम्मू के एस्पायरेंट्स के साथ अगर स्कैम हुआ तो वो फायर इमरजेंसी के लोगों के साथ हुआ। एक ही घर के, एक ही खानदान के 7-7, 8-8 लोग जो हैं वो लगा दिए गए। और रिपोर्ट्स जो हैं, ये लोग बच्चे फिर बार बार जो है प्रदर्शन करते हैं। कई बार इनके नुमाइंदे मेरे साथ नौगाम से, कुलगाम से, कश्मीर से, जम्मू के कई लोग जो है वो बात करते हैं कि सर हमारी बात को ओपन करें। पीछे इनका अभिनव शर्मा जी जो इनके केस लड़ रहे थे, उन्होंने भी कहा था कि जल्दी रिपोर्ट जो है वो आने वाली है, बड़े खुलासे होने वाले हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। रोकना चाहूंगा, फायर एंड इमरजेंसी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन जो है वो हरि सिंह पार्क के पास किया था। हंड्रेड्स ऑफ यूथ ने उस प्रोटेस्ट को शामिल हुए थे, गिरफ्तारियां हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है। मैं साथ ही साथ कहूँगा, जो सज्जन हमारे साथ फायर एंड इमरजेंसी का कमेंट कर रहे थे, आप अपना कोई इनबॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ अपना नंबर भी ज़रूर शेयर कर सकते हैं कि कुछ इस इशू को लेकर फिर ज़रा नई सरकार को इस मुद्दे के बारे में थोड़ा हाईलाइट किया जाए। आप ज़रूर कंटेक्ट दोनों पेजेस पे दे। बिल्कुल, फायर इमरजेंसी को लेकर राहुल चौधरी और कमेंट कर रहे हैं और चीज़ें बोल रहे हैं। आर चौहान जो है, यकीनन हम उम्मीद करेंगे कि आपके लिए इस रिपोर्ट को और आपके साथ ही बैठकर कहीं डिबेट करें, किसी नुमाइंदे को, सरकारी नुमाइंदे तक आपकी आवाज़, उनको भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। आप ज़रूर हमारे नंबर पर कॉल करें। अभी और इसके बाद एक और रोकना चाहूँगा आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है इमरजेंसी के। बलजीत सिंह कमेंट कर रहे हैं मेरे पे, एसपीओ को पे दे सकती नहीं एनसी कांग्रेस सरकार, बात किसको नहीं करती, बड़ी एसपीओ के पे दो, एसपीओ। हाँ, ये कोई कमेंट कर रहा है बलजीत जी। मैं कहना चाहूँगा, बात सरकारें करे ना करें, हमें किसी से वो नहीं है, लेकिन बट एसपीओस को लेकर जो सवालात उन्हें पूछने चाहिए थे, क्यों नहीं उन्हें सैलरी मिल रही है, 1.5 महीना हो गया। क्योंकि देखिए, एक आम इंसान के लिए अगर हमें ही कोई अगर एक मंथ की हमारी कंपनी हमें सैलरी नहीं देती है तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता, लेकिन लगभग 1.5-2 महीने से और मात्र सैलरी 12,000, 8,000, 7,000, 6,000 कुछ ऐसी सैलरीज हैं एसपीओस की। तो वो लोग लगातार हमें कंटेक्ट कर रहे हैं, मैंने कहा व्हाट्सएप मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, वो लोग नहीं बोल सकते, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उन्हें
उस चीज़ की अनुमति नहीं है। लेकिन बहरहाल हमें तो उनकी आवाज़ बनना है एसपीओस को लेकर, जो सवालात, चाहे वो बीजेपी का नेता मिले, चाहे वो एनसी का मिले, और चाहे वो विपक्ष किसी का भी मिले, कुछ और सवालात तो करेंगे। कुछ और कमेंट्स आ रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ सारे कमेंट्स। अर्जुन सिंह जी कह रहे हैं थैंक्स भाई जी। राहुल चौधरी जी कह रहे हैं सर प्लीज़ फायर इमरजेंसी की रिपोर्ट पर इंक्वायरी बैठी थी, वो रिपोर्ट अभी तक क्यों बाहर नहीं आई, उसके बारे में पूछना। ज़रूर पूछेंगे जी। लीडर तो सुरेंद्र चौधरी, बिल्कुल अच्छी बात है जी। सर अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे फ़ोन पे बात करूँगा। बिल्कुल आप कर सकते हैं। नंबर मैंने बोला है आपको, नंबर मैंने बता दिया आपको, आप मेरे से फोन पे बात कर सकते हैं। लाइव खत्म हो सकता नहीं, अभी लाइव चल रहा है अंकुश। आप अगर वो बोलना चाहते हैं उस इशू को लेकर तो। और दूसरी बात जो है, रिक्वेस्ट है कि राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, राशन कार्ड नहीं होने से बड़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है। प्लीज इसके लिए भी आप बोले, आप एरिया बताएं कहां पर आपके राशन कार्ड को लेकर प्रॉब्लम आ रही है। उस चीज को जो है हम मीडिया के सामने जो है वो उसको बताएंगे लोगों को। और जो है कि उम्मीद करेंगे कि आप एरिया बताओ। अगर आप कुछ भी कमेंट लिख रहे हैं, कहीं आपको कोई मुद्दा है, आप उस एरिया का नाम भी बताएं, कहां पर हैं। राशन कार्ड डीलर जो हैं, फ़ोन नंबर सामने आपको अपने बता दिए, एक बार फिर बोल देता हूं, 8494046450। दोनों के नंबर हमारे पेज अगर आप खोलेंगे तो हमारे ऑफिशियल नंबर यही हैं, उसी में आपके पड़े हुए हैं। रवि हंस जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि हंस जी फिर लिख रहे हैं एक बार, बिल्कुल हरमीत जी, डेली वेजेस की रेगुलाइजेशन सरकार करे और उसके बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे, ताकि जम्मू कश्मीर की जनता जो है बिल्कुल हो रही है। डेली वेजेस कमेंट्स जो है लगातार आ रहे हैं, क्योंकि डेली वेजेस ने काफ़ी योगदान और काफ़ी संघर्ष किया इन लोगों ने, और काफ़ी अरसे से ये लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, उमर सरकार को सोचना चाहिए। और हम तो याद दिलाएंगे जनाब, जब मौका मिलेगा, जब मुलाकात होगी, ज़रूर उमर सरकार से जो है जवाब मांगेंगे, चाहे वो सुरेंद्र चौधरी हो, सतीश शर्मा जी हो, कोई भी मिनिस्टर हो। एक चीज़ मैं और बता दूं, एसपीओज को लेकर जो कमेंट आ रहे हैं, एक शायद कुछ एसपीओज ऐसे भी हैं जिनके कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं, जिनकी पहले 18,000 सैलरी थी, फिर उनके 4500 कर दी। वो भी हमने खबर की थी, इन्हीं के केस लड़ रहे हैं। विक्रम राठौड़ जो हैं एडवोकेट हैं, वो भी फाइल जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में है। शायद उनकी वजह से जो है कुछ कई लोगों की, ये 1 महीने की बोल रहे हैं, जहाँ तक मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया था विक्रम राठौड़ जी के साथ, तो उन्होंने ये बताया था कि कई सालों से जो है वो उन एसपीओज की सैलरी नहीं आई, क्योंकि वो उतनी सैलरी ले नहीं रहे हैं। तो ये बड़े इशू हैं, हर एक इशू को उठाने की कोशिश हम लोग करते हैं। उनकी बात की विक्रम राठौड़ की, यहाँ उत्तम राठौड़ जी का कमेंट आ गया, कह रहे हैं भैया न्यू वीडीजी सैलरी। तो जाहिर सी बात है, कह रहा हूँ, विक्रम राठौड़ वहां पर है, उत्तम राठौड़ यहाँ पर है। उत्तम राठौड़ कह रहे हैं न्यू वीडीजी की सैलरी नहीं है। तो भाई साहब, वीडीजी की सैलरी दी है, लेकिन हरमीत जी के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, जो यूथ जॉब्स को लेकर परेशान था। हाल ही फिलहाल में इस जॉब्स भी देखने को मिले, लेकिन यूथ के बीच में ना एज रिलैक्सेशन को लेकर युवा मांग कर रहे थे। एलजी साहब से डेलीगेशन भी मिला, शायद 29 को डिसीजन भी आना है, यानी कल डिसीजन आना है कि आखिरकार एज रिलैक्सेशन अब मिलेगी। जो हाल फिलहाल में जेकेपी का कांस्टेबल का पेपर है, उन पेपर्स पे एडमिट कार्ड्स भी जो है, देखो मैं बात करता हूँ बिल्कुल फैक्ट्स की बात करता हूँ, और इधर उधर की बातें नहीं करता। मैं सीधी बात करूँगा, एडमिट कार्ड जो है वो आ चुके हुए हैं। सरकार बोल रही है, हालांकि एलजी साहब के पास कुछ नुमाइंदे बीजेपी के भी जो है वो कुछ गए थे, उन्होंने कहा कि उम्मीद जो अच्छी आई है। आज वो बीजेपी के लीडर वो भी ये कह रहे हैं कि 8 साल से जो है वो नौकरी नहीं मिली है, तो अब जो है वो रिलैक्सेशन कर देनी चाहिए। तो जनाब, आप ही के राज में नहीं मिली है। 8 साल से अगर नौकरी नहीं निकली तो जिम्मेवारी तो आपको भी जो है उसकी उठानी चाहिए। बलजीत सिंह जी एक कमेंट कर रहे हैं, सर राशन कार्ड में न्यू मेंबर ऐड नहीं कर रहे हैं, 8 साल का बच्चा को भी नहीं ऐड कर रहे हैं, आप बात करें। बलजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट करने, और काफ़ी देर से आप लाइव में जुड़े हैं। आप एरिया बताइए ज़रा और नंबर बताइए। एक और भी आया, डंसल पंचायत। कमेंट करिए आखिर कौन सा एरिया है कि आखिरकार जहाँ पे आपके 8 साल के बच्चे को ऐड नहीं किया जा रहा है। नए राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं सर जी, ब्लॉक डंसल पंचायत चुरूता। वेरी गुड, इसको हम सर्च करेंगे, और यहाँ के जो सरपंच हैं, आप यहाँ पंच जो हैं यहाँ के, उनसे भी बात करेंगे, क्यों नहीं चाहे वो एक्स हैं या कुछ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यकीनन आपने नाम बताया, अगर आप कोई कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपके पास है सरपंच का, आप व्हाट्सएप पे आप हमें व्हाट्सएप पे हमारे नंबर पे भेज दें, हम उनसे बातचीत करेंगे। और यकीनन इस खबर को विश्वास दिलाते हैं, यकीनन इस खबर को करेंगे, ताकि आपको राशन कार्ड में जो प्रॉब्लम आ रही है या राशन लेने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कुछ रूल्स जो हैं वो सरकार ने ज़रूर चेंज किए हैं। कोई राशन कार्ड्स, पीछे जो खबरें भी चली हैं कि कुछ राशन कार्ड्स को जो है वो बंद किया है,
जो फेक अननेसेसरली जो फेक जो राशन राशन मिल कार्ड रहा था, उसको सरकार एक स्ट्रीमलाइन में लाने की कोशिश भी कर रही है कि जो लोग बीपीएल है नहीं, लेकिन वो बीपीएल का नाम लेकर या राशन कार्ड किसी तरह से फर्जी बनाकर जो है वो जो डिजर्विंग है, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा और लोगों को और मिल पा रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जो हैं ऐसी तरह से लाइव में हमारे साथ जुड़ा करें। और भाई बड़े साहब ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਬਹਿਣਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਹੈ। नहीं तो कोई कर लो, शायद चौधरी साहब कने कोई गल शल हो जाए। करा मैं भी फोन करा उन्होंने ढिल्लो साहब ਨੂੰ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ भी सस्पेंड, निक्के साहब भी सस्पेंड, सब लिस्ट सस्पेंड। कितनी आई है वैसे तेरे को? बलजीत जी कह रहे हैं रियासी अरनास। बलजीत जी पैगाम टीवी पे ऑफिस का नंबर है, आप व्हाट्सएप पे अपना जुड़ जाएं। मैं आपसे फ़ोन कॉल पे बात करके तमाम डिटेल्स करने के बाद हम रियासी अरनास में जो है, जो वहाँ पे आपके कंसर्निंग जो है उनसे बात करके और ज़रूर आपकी खबर जो आपका कमेंट है ज़ाया नहीं होने देंगे। ज़रूर उम्मीद करते हैं कि इस पे कड़ा सा कड़ा एक्शन हो। अगर बात कर आप तक उसका जवाब भी जरूर पूरी फॉर्मेलिटीज़ के साथ जो है, अगर क्यों नहीं बनाया जा रहा, क्या पूरी लीगल फॉर्मेलिटीज़ है, तमाम चीज़ें करने के बाद ही जो है वो आपसे रुखसत लेंगे। आप जो है वो हमारे पेज के ऑफिशियल नंबर है, उस पर आप कर सकते हैं, या मेरे पर्सनल नंबर 6006649071 पर जो है व्हाट्सअप करिए। एक और कमेंट आया और ये बहुत सही कमेंट और बिल्कुल सही टाइम पे आया। रवि हंस जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं फ़ोन पे, इस समय कमेंट कर रहे हैं वो। एक खान शबीर जी हैं, डेली वेजर लैंड ओनर की बात करें। जनाब शबीर जी, आपके कुछ लीडर हैं अकरम शाह, मेरी उनसे कई बार डिबेट्स पे बात हुई है। बीजेपी के कई कैंडिडेट जो नुमाइंदे हैं उनसे कई बार हमने पीछे बात कराई थी जब तक इलेक्शन नहीं हुए थे। लैंड ओनर्स के मुद्दे को लेकर बड़े सवालिया निशान हैं। क्यों नहीं पक्का कर रहे हैं? जब मेरी रवि हंस जी से बात होती है तो वो ये कहते हैं कि जो धोखा डेली वेजेस के साथ हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा धोखा जो है वो लैंड ओनर्स के साथ हुआ। उनकी लाखों करोड़ों की ज़मीन जो है वो सरकारी इदारों ने अपने पास ले ली, वहाँ पर अपने प्लांट लगा दिए, अपनी स्कीम चला रहे हैं। वादा उनसे किया, ख्वाब दिखाया उनको मुंगेरी लाल का कि आपको नौकरी देंगे, नौकरी भी नहीं मिल रही है। कई लोग तो बेचारे जो लगे हैं डेली वेजर, उनको 9,000 मिल रही है, वो भी पक्के होने की उम्मीद में है। कई तो डेली वेजर तो हैं लेकिन उनको तनख्वाहें नहीं हैं, और जब वो सरकार को कहते हैं कि हमारी ज़मीनें हमारी वापस दे दो, हमें यहाँ पर हम पानी नहीं चलाएंगे, तो उनके ऊपर सरकारी बल, पुलिस बल, डीसी का बल सब यूज़ किया जाता है। हम तो आपकी आवाज़ उठाते हैं। नए मंत्री जो बने हैं जावेद राणा जी, उम्मीद करते हैं कि लैंड ओनर्स के मुद्दे को भी जो है वो ज़रूर जल्द से जल्द जो है वो सॉल्व जो है वो किया जाएगा। जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर के अंदर अब नई सरकार आई है, क्योंकि ये समय है, कर्मा इज बैक। समय के साथ सरकारें बदलती हैं, घूम रहा है सब कहते ना वो चरखा घूमता है। समय के साथ ये लाजमी है कि वक्त लोग भी चेंज चाहते हैं वक्त के साथ। ये लोगों का डिसीजन है, हमारा डिसीजन नहीं है। ना ही हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करते हैं, ना ही हम करेंगे, ना ही किसी के साथ है। मोटिव यही है, जिस मकसद को लेकर शुरू हुए थे उसी मकसद को लेकर चलेंगे। जनता की आवाज़ है, जनता के मुद्दे ना बिकेंगे, ना कभी बिके हैं। रवि हंस फिर कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल हरमीत जी, लैंड ओनर्स का मर्डर किया गया है सभी सरकारों ने, बिल्कुल हमारे साथ हालत ख़राब है। बिल्कुल जनाब, उम्मीद कर सकते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और हम तो यही दुआ करते हैं कि जितने भी डेली वेजर्स हैं, 47 डिपार्टमेंट हैं, इन 47 डिपार्टमेंट में जितने भी 61,000 डेली वेजर हैं, ये भी बता दूं आपको 61,000 डेली वेजर हैं, कोई लाख 1.5-2 लाख नहीं है। और उन 61,000 में से भी कई बेचारे अपने रिटायर हो चुके हैं, कई बेचारों को अपनी बीमारी का इलाज नहीं करा पाए, उनकी डेथ हो गई, कईयों ने सुसाइड जो है वो कर दिया है। तो सुरेंद्र चौधरी जो है वो बिल्कुल एक्शन में जो है वो लगे हुए हैं। अभी सोशल मीडिया पे एक फोटो भी निकल के सामने है, मैं चाहूंगा जरा अगर आप देख पाएं तो ये देखिए भाई साहब, दोनों तरफ दिखा, ये फोटो, ये उंगली देख लीजिए आप अपने डिपार्टमेंट वाले सारे, और ये चौधरी साहब खड़े एक्शन में। और चौधरी साहब इस वक्त पूरे मूड में है कि एक्शन हो उन लोगों के खिलाफ जो लोग सरकारी इदारों की सैलरी तो लेते हैं लेकिन सरकारी इदारों में काम नहीं करते। तो काम तो अब भाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमने कैप्शन लिखा ना, दफ्तर बुझो दफ्तर चौधरी साहब आए, चौधरी साहब आए। तो भैया चौधरी साहब कब आ जाएंगे आपके दफ्तर में? और उनके साथ जो और उनके साथी हैं उनको भी उन्होंने बोल दिया है
कि भाई सारे पै जाओ, जिन्ने जिन्ने डिपार्टमेंट है सबके लगाओ नाके, जिद्दी लब्बे कुर्सी खाली उसको लू घर बिठा के बजाओ ताली। ताली। बलजीत जी परेशान नजर आ रहे हैं। सर मैं 5 बार ऑफिस में गया हूं पर बात नहीं करते। भाई साहब ये कौन से टीएसओ साहब हैं जो आपसे बात नहीं करते हैं? ऑफिस में सभी फॉर्मेलिटी पूरी, अच्छा ऑफिस में पूरी फॉर्मेलिटी कर दी है और वो ऐड नहीं करते। कौन से टीएसओ साहब हैं ये? रियासी अरनास और टीएसओ साहब तक ये खबर पहुंचाओ। और आप बलजीत जी व्हाट्सअप करिए 6006649071। फिर से रिपीट कर रहा हूँ 6006649071। और आप मेरे साथ बात भी करिए और आपको जरूर इस इशू का रिजॉल्व मैं दिलवाने की कोशिश करूंगा। आखिरकार 5 बार ये बंदा ऑफिस में गया अरमीन जी, 5 बार जाने के बाद टीएसओ साहब से बात भी हुई है और टीएसओ साहब ऐड नहीं कर रहे फैमिली मेंबर में। ये क्या मसला क्या है? चलिए जरूर टीएसओ साहब तक कंटेक्ट करेंगे, टीएसओ साहब को भी सारा सवाल करेंगे आखिरकार क्या रीजन है, क्यों टीएसओ साहब नहीं ऐड कर रहे हैं, वो जरूर उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। बलजीत जी आप घबराइए मत, पैगाम टीवी जैन के न्यूज़ बस आपके साथ है। कमेंट और भी आ रहे हैं, कमेंट करिए और लोग जो लोग जुड़ रहे हैं। मैं कहूंगा कि रवि हंस जी आप इस वीडियो को जो है लैंड ओनर्स और अपने डेली वेजर्स के जो ग्रुप हैं वहां पर इनको शेयर जरूर कीजिए, ताकि और भी जो डेली वेजर्स के जो लैंड ओनर्स हैं वो करें। और मैं लैंड ओनर्स के जो नुमाइंदे हैं, जितने भी नुमाइंदे हैं जिनकी ज़मीनें सरकारी अदारों के पास हैं, आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट करें। हम एक मिलकर जो है एक डिबेट जो है वो करेंगे जिसमें रवि हंस जी को भी बिठाएंगे और लैंड ओनर्स के जो नुमाइंदे हैं और खास कर और उनको भी बिठाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो नई सरकार आई है उनको भी बिठाएंगे और जो पुरानी सरकार में जो लोग बैठे हुए थे उनको भी बिठाकर आपका मुद्दा एक बार जो है वो डिस्कस जरूर करेंगे। लोगों के लिए हमारे ऑफिस के दरवाजे 24/7 खुले हैं और कभी भी आप कॉल कर सकते हैं। एसीबी को रिपोर्ट जो है उमर अब्दुल्ला ने हमें कहा है कि हमारी रिपोर्ट एसीबी को सौंप दी गई है। आप प्लीज़ एसीबी के हेड से कंफर्म करो कि फायर इमरजेंसी रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल कोशिश करेंगे जी, आप एसीबी को अगर की है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी रिपोर्ट पर क्या चीज़ है, या जो आपके जो एडवोकेट हैं उनसे बात करेंगे, एक इंटरव्यू उनके साथ कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने इतनी बार कमेंट किया है तो निराश आपको होने नहीं देंगे। आपकी आवाज़ जो है उनसे ज़रूर पूछेंगे कि उनसे बेहतर जो आपके एडवोकेट हैं उनसे बेहतर शायद इस बारे में कोई और बता नहीं पाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि जल्द से जो होता है, अगर आप भी अगर गवर्नमेंट चैनल में होते तो क्या ऐसे लाइव होते? ये कौन दुखती नवज पे हाथ रख गया? आप कमेंट भाई साहब ने बहुत मारा। अशोक ये जी ऐसा आप भी अगर गवर्नमेंट चैनल में होते तो क्या ऐसे लाइव होते? जाहिर सी बात है सरकारी इदारों में जाके अभी एक बात बता दूं, नाम क्या है मेरे भाई का? अशोक टोरा जी। जनाब अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हमारे कि हम गवर्नमेंट चैनल बन जाए। गोदी चैनल बनने का मुझे कोई शौक नहीं है, शायद मुझे लगता है अंकुश भाई को भी कोई शौक नहीं है। इसीलिए आप ये यकीनन सही कह रहे हैं आप कि अगर गवर्नमेंट चैनल होते तो ऐसे लाइव नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हम ही दो ऐसे हैं कि जो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं। पूरे कई भाई बहन ऐसे हैं जो बड़ी बेबाकी से और बहुत निष्पक्ष होकर जो है, चाहे कोई भी आगे खड़ा हो, सवाल आपके सवाल जरूरी है पूछे जाते हैं। हमारी रश्मि बहन है, बहुत ही बेबाकी से जो है वो रिपोर्टिंग करते हैं। और भी कई चैनल्स हैं। हाँ, कुछ मजबूरियां जो हैं वो रहती हैं, जो सरकारी अदारों के साथ चैनल जुड़े हैं। अब उनके लिए हम कुछ नहीं कह सकते। वो एक शायर का शेर है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी उनकी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो एक रील और भी वायरल हो रही है, वो आजकल कहते हैं वो कुछ मैं कल सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि हर एक जो सिस्टम ना वो एक बिजनेस पॉइंट बन गया है। और एक कवि ने वो रील बनाई थी, उन्हें अल्फाज कहे थे, वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि अगर ये मीडिया का अगर ये भी अगर एक बिजनेस बन गया तो कहीं ना कहीं सुरेंद्र जी कमेटी थे लल्लन टॉप पे, चौधरी जी त्रिवेदी जी से बात हो रही थी और उन्होंने कहा था ऐसा नहीं है, पत्रकारिता नहीं, अब पेटकारिता करते हैं। तो पेट के लिए अपने बीवी बच्चे पालने हैं, लेकिन हमारा भी घर-बार है और समाज में कई ऐसे बहुत सीनियर हमारे पत्रकार हैं जिन्हों बेबाकी से काम करते हैं। लोग सवाल भी करते हैं, क्योंकि पत्रकारिता एक बिजनेस नहीं है, ये एक वो ऐसा पाक काम है, ऐसा सोशल सेवा है, जनता की वो सेवा है। जैसे देश में आर्मी जो बॉर्डर पे जब आर्मी का सोल्जर जो है वो लड़ रहा है,
जवान और किसान हमारा पेट पालता है, हमारे घर में हमारी रक्षा करता है, हमारे बॉर्डर्स की रक्षा करता है, वैसे ही पत्रकार जो है वो जनता की आवाज़ जो है वो हर दरवाजे को खटखटाने के लिए बिल्कुल तत्पर रहता है। इसीलिए उसको फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम दिया गया है, चौथा स्तंभ कहा गया है। 4 स्तंभ हैं हमारे लोकतंत्र के और चौथे स्तंभ में हमें डाला गया है। लेकिन आज ये कहने में भी मुझे कोई शर्म नहीं है और कोई गुरेज नहीं है कि वो चौथा स्तंभ जो है वो अपना अस्तित्व खो चुका हुआ है, वो उसका ढांचा जो है वो टूट चुका हुआ है, गिर चुका हुआ है, और आज सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट्स के लिए, बिजनेस के लिए सरकारी तंत्र का जो है वो गुलाम बनकर बैठा हुआ है। तो वो चाटुकारिता करते हैं, पत्रकारिता नहीं करते हैं। कुछ पेटकारिता कर रहे हैं, कुछ चाटुकारिता करते हैं। तो ना हम चाटुकार बनेंगे ना हम पेटकारिता करेंगे। आज हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, लोकतंत्र के पहरेदार की तरह करते हैं। खबर कुछ भी हो, लेकिन परवेज खान जी कमेंट कर रहे हैं, अब्सोल्यूट भंडारी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज हमारा भाई है, ये छोटा, ये भी एक न्यूज़ चैनल में काम करता है, रिपोर्टर है, बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी होती है। और बलजीत जी कह रहे हैं सर मेरे को तो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितना ऐड होता है क्या नहीं, सर मैं आपके नंबर पे सेंड कर रहा हूँ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलजीत जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी अरसे से जो है वो आप रियासी अरनाज से इस वक्त लाइव देख रहे हैं। क्योंकि जब भी मैं लाइव आता हूँ कुछ लोग रियासी से जुड़ते हैं, जम्मू कश्मीर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ लोग जुड़ते हैं। तो जाहिर सी बात है लोगों को हम पर उम्मीद है कि आखिरकार ये भी कुछ जो है वो हमारी आवाज़ को कमेंट्स के सेगमेंट के हिसाब से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है और ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ इसी तरह से लाइव इंटरेक्ट होने की। क्योंकि जब से नई सरकार आई है समय मांगा जा रहा है, एक समय का शब्द का बड़ा इस्तेमाल बार बार हो रहा है कि हमें समय चाहिए। उमर सरकार अभी हाल ही में आई है, ये चीज़ें हो रही हैं, हमें पत्रकारों का सहयोग चाहिए। लेकिन पत्रकारों का सहयोग मिलेगा, हम भी सवालात कर रहे हैं लेकिन समय समय का गैप लेके कर रहे हैं। सहयोग मैं देख रहा था, आप जो बात बोल रहे हो, कई बार पत्रकारों का सहयोग चाहिए। तो पत्रकार ये थोड़े करेंगे कि आप अब नई सरकार आई है तो आप जो बोलेंगे तो वो नहीं, अगर कोई सरकार के खिलाफ अगर कोई आलोचना करनी है आपकी नीति की तो करेंगे। अब आप बोलोगे उसमें सहयोग दे दे, हम आपकी आलोचना ना करें, तो वो नहीं हो सकता। एक कमेंट और आया है, ये लिख रहे हैं, ये सिंह साहब ज़रूर होते क्योंकि मैं इनसे पर्सनली मिला हूँ, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और किसी से डरते नहीं हैं, इसलिए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका अप्रिशिएट करने के लिए। डरना क्यों है, हम खाना आप क्या कहते हैं, एक शायर ने और भी अच्छा कहा है कि डर कर 2 जिंदगियाँ नहीं मिलती, भगवान ने एक ही जिंदगी दी है हमें और एक बार मौत आएगी वो ऊपर वाला देगा। काल पुरख ने वाहिगुरु ने जब देनी है तो आनी आनी है। वो किसी की गोली से मरना है, राह चलते मरना है, जेल में बैठ के मरना है या घर पे बैठ के मरना है, वो काल पुरख ने लिखा हुआ है। तो डरना नहीं है। डर के 2 जिंदगी अगर मिलती होती तो शायद फिर डर के रहना चाहिए था। आप शायरी मिलनी तो एक ही है। शायरी लिखने का थोड़ा शौक रखता हूँ तो इसलिए काटना। और रिपोर्टर्स लिख रहे हैं कि हमें हर पत्रकार की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि न्यूज रिपोर्टर हैं हम लोग हैं, वरना लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है आज के टाइम। इसलिए मीडिया हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, राहुल चौधरी सबकी इंपॉर्टेंट जो है, अपने दायरे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी के लिए गलत क्यों, बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे इदारे के बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, सारे लोग ही अच्छे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज लाइव बड़ा लंबा हो गया और उम्मीद करेंगे आप लोग जुड़े करें जब भी हम लोग लाइव आते हैं। काफी अच्छा काम हमारे इदारे के अंदर हो रहा है और उम्मीद यही रखते हैं कि आप लोग सभी को प्यार दें इसी तरह से जिस तरह से आप ठीक शाम को आज हमारे साथ जुड़े। फिर उम्मीद करेंगे कभी किसी नए मुद्दे के साथ। आज चौधरी साहब का मुद्दा था, चौधरी साहब ने आज सस्पेंशन हाथों में थमा दिए हैं सबके भाई साहब। और लेकिन एक बात है, चौधरी साहब ने ये आज ज़रूर जाहिर कर दिया है कि जनाब आप बैठेंगे घरों में और तनख्वाह लेंगे सरकारों की, वो मुझे तो लग रहा है अंकुश जी अगर इसी तरह से सरकार के ये चौधरी साहब काम करते रहे और इनके और नुमाइंदे काम करते रहे, क्योंकि जनता से भी लगातार मिल रहे हैं और सरकारी अदारों को भी कसने की पूरी कोशिश की है। और अभी तो सिर्फ सस्पेंशन ऑर्डर लगा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर टर्मिनेशन छोड़े कहीं सैलरी विदहेल्ड ना कर दे। पीछे मैंने देखा एक क्लिनिक में जो है कई एब्सेंट थे, कहीं जगह थी, मुझे किसी ने भेजा था, एमएलए साहब थे वो,
एमएलए साहब ने ही सस्पेंशन ऑर्डर निकाला और हाँ उनका भाई उनकी साहब, सैलरी भी विद हेल्ड बता देता चलो वो हूँ, ये भी MLA बात साहब ने बता कैसे किया, देता हूँ, उसको ये भी बता देता हूँ। एक हॉस्पिटल था बाबूजी, हाँ, सरकारी क्लिनिक था ये, बिल्कुल वो। सरकारी वहां थी, पर था कोई नहीं। 70% स्टाफ वहां पर प्रेजेंट नहीं था। जैसे चौधरी साहब ने आज सीनियर पे छापा मारा, वहां पे भी 70% स्टाफ मौजूद नहीं था। तो फिर वहां पे जो एमएलए साहब थे उन्होंने भी फिर उन्होंने भी एक्शन किया, और ये ऐसा एक्शन होना चलाया, चाहिए, चरखा चलाया, एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये एक्शन होगा तब भी जो है इसका रिएक्शन जो है हमें देखने को जरूर मिलेगा। मिलेगा। और जनता के काम जो है ऐसे चुटकियों में होंगे। और फिर अब क्या करना है, आगे चलना है। नहीं, चलना तो जरूर है। ये कमेंट एक और पढ़ लेता हूँ, लैंड ओनर का ही आया, कोई बात नहीं। मैं शबीर जी, यकीनन आप जो लिख रहे हैं कि हरमीत जी आप लैंड ओनर के इशू को बहुत करीब से समझते हैं, 2002 से लेकर आज तक बहुत डिपार्टमेंट ने इस्तेमाल किया है लेकिन इंसाफ नहीं मिला। बिल्कुल यकीन मैं आपको दिलाता हूँ, सब पता है। मेरे पास कई एफिडेविट मेरे पास घर पर फाइल बनी पड़ी है लैंड ओनर्स की, जिन्होंने मुझे लैंड ओनर्स ने भेजी है, उधमपुर से, नौगाम से, कुलगाम से, नौशहरा से, कठुआ से, कई लोगों ने भेजी हैं। लेकिन हम आवाज़ ही शबीर जी बन सकते हैं आपकी, गुलजार जी कमेंट कर करना रहे हैं, तो सरकारों नहीं है। गुलजार कह रहे हैं प्लीज डेली वेजेस का मसला उठाओ। भाई साहब हम रवि हंस जी को पूछिए, 24/7 जो है वो ज़रूर उनके कांटेक्ट में रहते हैं और जब भी वो मिलते हैं ज़रूर उन तक भी पहुंचते हैं। दफ्तरों में वहाँ पे लाइव किया है, रवि हंस जी का मुद्दे को ज़रूर उजागर करने की कोशिश करें। और लेकिन सवाल आज भी सतीश शर्मा से जी से पूछा गया डेली वेजेस को लेकर, जो है उन्होंने कहा कि हम इसको लेकर जो है वो काम कर रहे हैं और जल्द से जल्द पूरी कोशिश है इन डेली वेजेस को पक्का करने के लिए। सर कब होंगे डेली वेजेस परमानेंट, प्लीज इसके बारे में भी बोलो। खान तारिक जी, ये डिपार्टमेंट्स कह सकते हैं और उसके साथ जो चुनिंदा सरकार चुन के आई है वो बहरहाल टाइम ड्यूरेशन ज़रूर कह सकते हैं। ज़रूर पूछने की कोशिश करेंगे, आपके कमेंट को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और हमारे लिए हमारे व्यूवर्स बहुत वैल्यूएबल है। तो आप लोग पैगाम टीवी के ऊपर इस वक्त जो भी लोग लाइव देख रहे हैं या JNK न्यूज़ बज़ पे देख रहे हैं तो भाई साहब शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करेंगे तो हम इसी तरह से बेबाकी से जो काम कर रहे हैं और जो शो आप तक लेके आते हैं जाग दो जम्मू वाले, थोड़ा फनी वे में होता है, कोई लोग इसे किसी और वे में ना लें। जर्नलिज्म के अलग इथिक्स हैं, जर्नलिज्म एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि लोगों तक मैसेज इजी वे में पहुंचाना, ये चीज़ें जो है वो एक फ़नी वे में करना एक अलग अंदाज है, ये इसे कोई उस एंगल से ना ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो है जुड़े रहने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से आप जिस तरह हमारा हौसला बढ़ाया, आपने हमें कमेंट्स लिखे, हमें अप्रिशिएट किया, और जो भी आप लोगों के मुद्दे हैं वो आपने हम तक पहुंचाए, और उम्मीद विश्वास आपको यही दिलाते हैं कि आपके मुद्दे जो हैं वो आपको किस तरह से हल किए जा सकते हैं। आपके कौन से वहाँ के रहने वाले जो सरकारी लोग हैं वो क्यों आपके मुद्दों को हल नहीं कर रहे, उन तक भी बात करेंगे, और आपको भी वापस जो है उसका रिवर्ट बैक जो है वो ज़रूर देंगे। मगर आप कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे जो नंबर्स हैं, व्हाट्सअप नंबर हैं, हमारे जो फ़ोन कॉल्स हैं, हमें कॉल करें, उन प्रूफ्स को हम तक पहुँचाएँ, ताकि हम भी एक निष्पक्ष होकर जो है बिल्कुल आपकी बात जो है वो कर सकें। और इसी तरह से प्यार देते रहें। ज़मीनी मुद्दे बहुत हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ मुद्दे तो आपने गिनवा ही दिए, इन मुद्दों पे पहले काम कर लेंगे और फिर अगला लाइव जो आपके साथ जुड़ेंगे। यकीनन आप इसी तरह से प्यार जो है मेरे को, JNK न्यूज़ बज़ को और अंकुश के पैगाम को जो है वो ज़रूर इसी तरह से प्यार देंगे, और अपने कमेंट्स और शेयरिंग जो है वो ज़रूर करा करें, क्योंकि यही हमारा हौसला जो है वो बढ़ाता है। एक और बड़ा खुलासा बलजीत जी और उन्होंने कर दिया, रियासी अरनास में जिसके घर में करोड़ों रुपए हैं उसके घर पे BPL। भाई साहब रियासी अरनास तो आना पड़ेगा हमें अब। चलिए बलजीत जी, कोशिश करेंगे कि आप नंबर अंकुश जी से कांटेक्ट करें, और हम एक दिन रियासी का टूर मेरा वैसे ही बन रहा है, अगले हफ्ते हमने आना है, अगले हफ्ते सैटरडे संडे मेरा टूर है वहाँ पर रियासी का। तो उम्मीद करेंगे बलजीत से आपसे पर्सनली भी मिल लेंगे, आप अंकुश जी से कांटेक्ट कर लें, उनके नंबर पे व्हाट्सएप पे या फ़ोन कॉल जो आपको ठीक लगता है उस पर बातचीत कर लें, और हम सैटरडे संडे उम्मीद करेंगे कि आपसे कोशिश करेंगे कि आपके पास हमारा टूर कैंसिल ना हो, तो आपसे मिलेंगे ज़रूर। और ये जो खुलासा है आप जो करवा रहे हैं, इस खुलासे को प्रूफ के साथ जो है हम साबित करेंगे। तो बहरहाल लाइव को शेयर कीजिए, जाग दो जम्मू वाले शो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, और JNK न्यूज़ बज़ और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो लाइक शेयर करते रहें। और YouTube पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इनका भी YouTube आप पैगाम टीवी जो है लिखकर आप YouTube पे सब्सक्राइब कर सकते हैं,
और हमारा JNK न्यूज़ बज़ जो है BUZZZ लिखिएगा, तो उसमें आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जितना प्यार आप हमें फेसबुक में देते हैं, यूट्यूब पर भी हमारी वीडियोस को उतना ही ज़्यादा शेयर जो है वो आप करा करें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अगला लाइव जब भी आपके साथ जुड़ेंगे आपके मुद्दों को लेकर बात होगी और सरकारी इदारों तक पहुंचाने का वादा जो है वो हम दोनों का आपके साथ रहेगा। रहेगा। जय हिंद। जय हिंद।